नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना पुलिस ने LWE के खिलाफ लड़ाई के लिए केंद्र से अतिरिक्त मदद की मांग। पटना में महेंद्र रेड्डी की विधान परिषद में सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में संभाल ली जिम्मेदारी। KT रामाराव ने करीमनगर में पत्रकारों के आवास की रद्दीकरण को क्रूर बताया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की घोषणा। लिबनान में इजरायली हवाई हमले में 36 की मौत, 150 से ज्यादा घायल। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना पुलिस अधिकारियों ने वामपंथी उग्रवाद LWE के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहायता की अपील की है। उन्होंने वर्तमान स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए बलों की तैनाती और बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के चुनौतियों पर चर्चा की है। महेंद्र रेड्डी ने विधान परिषद में सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनी जिम्मेदारियां ग्रहण कर ली हैं। अपने कार्यकाल की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने विधान परिषद में विशेष प्रार्थना कर ये संकेत दिया है कि वह अपनी नई भूमिका के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये नियुक्ति उस समय हुई है जब सरकार अपने विधायी एजेंडे को मजबूत करने और परिषद में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। रेड्डी के अनुभव और नेतृत्व से चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने और सरकारी पहलों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। जीवन में वो परिकिम दक्षिणमयी कनवे मया ओ करुणामया कनवे मया ओ करुणा। VRS विधायक और मंत्री जगदीश रेड्डी ने सरकार से मूसा नदी के सुंदरीकरण की योजना की जानकारी देने की मांग की है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि गरीबों को उनके घरों से बेदखल किए बिना नदी का सुधार संभव नहीं है। तेलंगाना भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगदीश रेड्डी ने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नदी परियोजना के लिए 1,50,000 रुपए खर्च की घोषणा की है, जबकि उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने इस परियोजना के लिए कोई राशि खर्च करने की घोषणा नहीं की। ఇక్కడ చోటేబాయి కూడా హైడ్రా విషయంలో మూసీ ప్రాజెక్టు విషయంలో అదే తప్పు చేసి పూటకు ఒక మాట మారుస్తున్నాడు. అక్కడ చెప్పేటప్పుడు ఎందుకు రద్దు చేస్తున్నావు అని అంటే దాని లోపల అంతర్గత ఉద్దేశం వేరే ఉంది. ఆయన మిత్రుడికో ఒకడికో ఇద్దరికో ఏదో సాయం చేయడం కొరకు చేసి దానికి మొదలు చెప్పిన మాటేమో ఏదో టెర్రరిస్టులు దగ్గర ఉంది ఈ డబ్బంతా, అది రద్దు చేస్తే అది మన ఖరాబైపోతుంది, మనకు లేకుండా పోతుంది కాబట్టి జీవిస్తామని చెప్పినాడు. ఆ తర్వాత లేదు నల్ల డబ్బు మొత్తం బయట దేశాల బ్యాంకులలో ఉంది, అది పోతుంది, ఇప్పటి నుంచి ప్రింట్ చేసిన మన డబ్బే మిగులుతుంది, ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతుంది, అది ఇది లాభం అవుతుంది దేశానికి అని చెప్పిండు. ఆ తర్వాత నక్సల్స్ ఏదో వాడుతున్నారు, మొత్తం వాళ్ళకాడ చాలా ఉంది, ఇప్పుడు అది కూడా లేకుండా పోతుంది, దాంతో నక్సలిజం పోద్ది అని చెప్పిండు. చివరికి వచ్చేవరకే ఈ దేశ ఆర్థిక రంగాన్ని నాశనం చేసింది అది. చివరికి 2,000 నోట్లు ఇచ్చిండు ఇంకింత నల్ల డబ్బు దాచుకునే పద్ధతుల్లో, ఆయన దోస్తులకు ఎవరికో ఇద్దరికి అవసరమైన పద్ధతుల్లో ప్రజలందరినీ ముంచి, ఈ దేశ ప్రజలందరినీ ముంచి రోజుల తరబడి ఆకలితో చంపి ఎవరు పైసలు వాళ్ళు 500 తీసుకోవడానికి లైన్లలో నిలబడేటట్టు చేసి దుర్మార్గంగా ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపేసే పద్ధతుల్లో వ్యవహరించిండు. అదే పద్ధతుల్లో ఇవాళ ఇది ఎవరి మీదనో ఒక వ్యక్తిగతమైన కక్షతోని హైడ్రా లేదా తనకు తాబేదారులైన ఒకరిద్దరు కాంట్రాక్టర్ల కొరకు వాళ్ళ నుంచి కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టి ఢిల్లీకి కప్పం కట్టి తన పదవి నిలబెట్టుకోవడం కొరకు మూసీ ప్రాజెక్టును ముందుకు తెచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి గారు.
ఇప్పుడు మేమే కాదు, ఇప్పటికీ ఎవరడిగినా సమాధానం లేదు. అసలు నువ్వు మూసిలో ఏం చేయదలుచుకున్నావు, దేని కొరకు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం చేసినావు, ఇండ్లు కూలగొట్టే కార్యక్రమం అర్జెంటుగా దీనికి ప్రారంభం చేసినావు. ముందు కేవలం చెరువులని నీళ్ళలో నింపాలే, చెరువులలో ఇండ్లు అయినాయి, నీళ్ళు తక్కువైనాయి, అందులో కింది పొలాలు ఎండిపోతున్నాయి, అందుకనే అర్జెంటుగా హైడ్రాతో మొదలు ఐఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో ఉన్నాయి, బఫర్ జోన్లో ఉన్నాయి, కూలగొట్టాలి అని చెప్పి మొదలుపెట్టిన అన్నాడు. ప్రజల నుంచి తిరుగుబాటు వచ్చింది. అసలు మొదట హైడ్రాను ఇంతేంతో పెద్ద ఈ హైడ్రా వచ్చింది కాబట్టే ఇక ఈ హైదరాబాద్ మిగులుతుంది, హైదరాబాద్ లేకపోతే హైడ్రా లేకపోతే హైదరాబాదే లేదు అన్న పద్ధతిలో ప్రచారం చేయించిన ఆయన తాబేదారులు. చివరికి కోర్టు మొట్టికాయలు వేసేంత వరకు దానికి లీగల్ శాంక్టిటీనే లేదు అని చెప్పి నిన్న మొన్న ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేసి. అంటే ఎంత అనాలోచితంగా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం. అసలు ప్రభుత్వం అనేది ఒక చట్ట పరిధిలో పనిచేస్తుందని, లేదా అవసరమైనప్పుడు చట్టం చేస్తుందని ఆ సోయి కూడా లేని వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారు. మూసీ విషయంలో మూసీ సుందరీకరణకు సంబంధించి అసలు మీ దగ్గర ఉన్న ప్లాన్ ఏంది, దేని కొరకు, ఏ మేరకు చేద్దామనుకుంటున్నారు, ఎంత మేరకు? बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने करीमनगर शहर में पत्रकारों को आवंटित घरों को रद्द करने की राज्य सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। इसे गलत और क्रूर करार दिया है। रामाराव ने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पत्रकारों को मकान आवंटित की बीआरएस सरकार की उपलब्धि को स्वीकार करने में असफल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीआरएस ने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया है और हमेशा ये काम जारी रहेगी। इसके अलावा रामाराव ने राज्य में प्रबंधन की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार हैदराबाद में गरीबों के घर को तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ करीमनगर में पत्रकारों के घर को वापस ले रही है। మీ ఇంటికొచ్చి ఓటు అడిగిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు కార్పొరేటర్ కావచ్చు, లేకపోతే కౌన్సిలర్ కావచ్చు, లేకపోతే గల్లీ లీడర్ కావచ్చు, ఎవరైతే మీ ఇంటికి వచ్చి అబద్ధం చెప్పిండో, ఎవరైతే 100 రోజులు 6 గ్యారెంటీలు అని నరికిండో వాడిని పట్టుకోవాలి. అధికారులతో మనకేం పని? అధికారులది ఏముంది? వాళ్ళు గవర్నమెంట్ పైసలు ఇస్తే మీ ఖాతాలు వేస్తారు. అసలు ఇవ్వకపోతే వీడేం చేస్తాడు మధ్యలో? అందుకే బరాబర్ ఖచ్చితంగా పట్టుకోవాల్సింది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను, కాంగ్రెస్ ఎంపీలను, కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లను, కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లను, కాంగ్రెస్ గల్లీ లీడర్లను పట్టుకొని, ఏమాయ కొడుక మరి ఓట్లప్పుడు బాగా తిరిగితివి, ఇప్పుడు పత్త లేకుండా పోయినావు, యాడున్నావు నువ్వు, నీ రేవంత్ రెడ్డి, మీ రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడున్నారు? గ్యారంటీలు అన్నారు, మరి గారడి మాటలు మాట్లాడినరు, ఏం సంగతి అని అడగాలి. నిన్న మీరు చూసిండ్రు హర్యానాలో బుద్ధి చెప్పిండ్రు కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కర్ణాటకలో గిట్లే మోసం చేసిండ్రు, 5 గ్యారెంటీలు అన్నారు, అక్కడ ఎలక్షన్లో బయట పడ్డాక పైసలు లేవు, ఏం చేయాలన్నారు. ఆ తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్ 10 గ్యారెంటీలు అన్నారు, అక్కడ ఇట్లే మోసం చేసిండ్రు. తెలంగాణలో 6 గ్యారెంటీలను ఇక్కడ గారెడి చూపెట్టినరు, ఇక్కడ మోసం చేసిండ్రు. నిన్న హర్యానాలో ఎలక్షన్ పోయినరు, 7 గ్యారెంటీలను పోయినరు. కానీ హర్యానాలోకి అర్థమైపోయింది వీళ్ళు పచ్చి లంగలు ఉన్నారు, కర్ణాటకలో మోసం చేసిండ్రు, తెలంగాణలో మోసం చేసిండ్రు, అక్కడ హిమాచల్లో మోసం చేసిండ్రు. हर जगह ये लोग धोखा ही करे, फिर हमारे साथ भी वही धोखा करते बोल के हरियाणा में कल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाए। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी, कम से कम अब तो सुधर जाओ, कम से कम अब तो गरीबों की मदद करना शुरू करो। जो वादा आप करे, 6 गारंटी, जो डिक्लेरेशन आप दिए, किसान डिक्लेरेशन, युवा डिक्लेरेशन, महिला डिक्लेरेशन, आप काफी सारे वादा करें, वो निभाना कम से कम अभी तो शुरू करो, वरना जो सबक आपको सिखाया गया और जगह यहां पे भी वही सबक आपको मिलेगी. మీ అందరితో నేను కోరేది ఒకటే, ఇవాళ అలాउद्दीन पटेल గారు మన పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు. मैं अलाउद्दीन से भी और जिल लीडर आपके साथ आए, हमारे जो बहन और भाई आपके साथ है, मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं. हाँ, आपके शेरलिंगमपल्ली एमएलए वो जाके उनमें मिल गए कांग्रेस पार्टी में, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, जाके कांग्रेस में मिल गए. बट अपने को कोई डरने की जरूरत नहीं है. आज शहर हैदराबाद में हर कोई इंसान आज केसीआर साहब को मिस कर रहा. अरे साहब, केसीआर साहब के टाइम पे कितना सुकून की जिंदगी थी. बतुकम्मा होता तो एक साड़ी मिलता, रमजान के वक्त तोहफा मिलता, क्रिसमस आते ही क्रिसमस के दिन एक और तोहफा मिलता, और गरीबों की मदद की जाती. वजीफा हो, कल्याण लक्ष्मी हो, शादी मुबारक हो, हर वो प्रोग्राम जो गरीब के लिए चाहिए था, केसीआर साहब ने उसका इंतजाम हमेशा से टाइम पे किया. मैं आप भाइयों से बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब तक
जब तक आपके साथ केसीआर है, जब तक ये गुलाबी कंडवा आपके साथ है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लड़ेंगे और बिल्कुल सेक्युलर ही रहेंगे। किसी भी हाल में जो एक गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हैदराबाद और जिसके लिए तेलंगाना। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा है कि वह महाराष्ट्र को बचाने के लिए सहयोगी कांग्रेस या राकांपा द्वारा घोषित किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार पर विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापनों के जरिए राज्य में झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। महायुति सरकार की लड़की बहन योजना पर कटाक्ष किया है, जिसके तहत राज्य में महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि सरकार इस योजना के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक धन देकर महाराष्ट्र के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। उन्होंने गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलाने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसके बाद गठबंधन की बैठक होगी। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि गठबंधन अपने नेता का चुनाव करेगा, जिसके बाद राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण के समारोह के बारे में कहा है कि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ये सब लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला किया है। They said statehood will be restored to JNK, and that is what we hope will be done. So are there any plans of meeting LG in the coming? Look, you can't form a government without meeting the LG. Whoever has to stake claim will have to meet the LG. अगर बिना LG से मुलाकात किए हुए या हुकूमत बना सकते थे तो हमने 6 साल पहले ही हुकूमत बना ली होती, लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं सकती। तो पहले जैसे मैंने कहा लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। उमर साहब, की तो बात होगी, एक बड़ा मुद्दा रहा था इलेक्शन में, मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। The incoming government will have a major responsibility of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference, it will not be a government of the Alliance, it will not be a government of those that voted for us. It will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. Omar sir, how many independent candidates have approached National Conference so far, and when do आप क्यों हमसे ये बात करवा रहे हो? अब मैं आपको नंबर दूंगा, कल को उनको बुलाया जाएगा, तंग किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक आध ने हमसे बात की है, हमारी बातचीत उनसे जारी है और जब वो आएंगे तो हम आपसे वो बात छुपा तो रख नहीं पाएंगे। When do we expect the government formation? How many? First and foremost, wait for the legislative party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. It will determine the leader of the alliance. The leader of the alliance will then, I assume, take letters of support.
go to Raj Bhavan, stake a claim and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible, because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. So the legislative party meeting will be held tomorrow? Inshallah, tomorrow. So Farooq Saab said that you will be the CM. I am very grateful for the confidence that he has reposed in me. But that decision is of the legislators to make. It is a decision of the alliance to make. I love my father dearly, and I'm very grateful for the support that he has shown me yesterday. But finally, the say has to be of the legislators, and I'm always one to do things by the rules and by the book. This is how the procedure that has to be followed, and that's what will be done. But if you become the chief minister, what would be The your if top and but, I don't, when? you know me, I don't give categorical answers to hypothetical questions. Whichever chief minister is sworn in the next few days, obviously there will be two sets of priorities. One is legislative, which will be determined by the members of the Legislative Assembly when the session is called. But the other is government related. And my own suggestion or my own word of advice to the incoming government would be that the first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir, and the Chief Minister should travel to Delhi with that resolution, call on the senior leadership of the country and ask them to fulfill their promise, because it is the Honorable Prime Minister, the Honorable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood. Nowhere did they say that statehood will be restored only to a BJP government, or statehood will be restored only to a government that has BJP members. They said statehood will be restored to J&K, and that is what we hope will be done. So are there any plans of meeting LG in the coming? Look, you can't form a government without meeting the LG. So when Whoever has to stake claim will have to meet the LG. So when are you अगर बिना LG से मुलाकात किए हुए या हुकूमत बना सकते थे तो हमने 6 साल पहले ही हुकूमत बना ली होती, लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं सकती. तो पहले जैसे मैंने कहा, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे. उमर साहब, स्टेटहुड की तो बात होगी, एक बड़ा मुद्दा रहा था इस इलेक्शन में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रिस्पॉन्स? मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं. हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है. मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है. वो लोगों को धोखा देने के बराबर है. हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे. ये मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा. The incoming government will have a major responsibility of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference. It will not be a government of the Alliance. It will not be a government of those that voted for us. It will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. Omar sir, how many independent candidates have approached National Conference so far, and when do you expect them? आप क्यों हमसे ये बात करवा रहे हो? अब मैं आपको नंबर दूंगा, कल को उनको बुलाया जाएगा, तंग किया जाएगा. मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक आध ने हमसे बात की है,
हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। जबकि एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित होते हैं, इस बार के परिणामों ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है। बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन वोटों की गिनती के दौरान कांग्रेस ने गिनती के तरीके पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नतीजों का न सिर्फ आश्चर्यजनक बल्कि अस्वीकार्य भी बताया है। उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने की संकल्प भी जताया है और कई अहम सवाल भी उठाए हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है और यही प्राथमिकता होगी। और भी मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। साझा कार्यक्रम, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो भी है, साझा कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा और एक पारदर्शिता से जवाबदेही और संवेदनशील सरकार एक गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता को देगी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में
हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोग भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। पिछले 24 घंटों में लिबनान के विभिन्न इलाकों में इजरायली हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 36 हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लिबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार रात इस जानकारी को साझा किया। मंत्रालय के अनुसार बेका क्षेत्र में 6 लोग मारे गए हैं और 8 अन्य घायल हो गए हैं, जबकि नबातिया प्रांत में 30 लोग मारे गए हैं और 121 से ज्यादा घायल हुए हैं। माउंट लिबनान में 20 लोग घायल हुए हैं और बालबेक हर्मल जिले में 1 व्यक्ति घायल हुआ है। लिबनानी अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमलों की शुरुआत के बाद से अब तक मरने वालों की तादाद 21,000 से अधिक हो गई है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच चल रही जंग के बीच इजरायली सेना का एक बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली सेना ने कहा है कि बैरूत में हुई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर सुहैल हुसैन हुसैनी की मौत हो गई है। हालांकि इस मामले पर हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे ये पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ये खबर सच है या गलत। इसराइल ने बीती रात लिबनान के राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। मरने वालों की संख्या अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इजरायली रक्षा बल IDF ने मंगलवार को जानकारी दी है कि इस हमले के दौरान हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडर सुहैल हुसैन हुसैनी भी मौजूद थे और वो मारे गए हैं। आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना पुलिस ने LWE के खिलाफ लड़ाई के लिए केंद्र से अतिरिक्त मदद की मांग। पटना में महेंद्र रेड्डी की विधान परिषद में सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में संभाल ली जिम्मेदारी। KT रामाराव ने करीमनगर में पत्रकारों के आवास की रद्दीकरण को क्रूर बताया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की घोषणा। लिबनान में इजरायली हवाई हमले में 36 की मौत, 150 से ज्यादा घायल। 1TV हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।